बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सीधा वहीं का रुख कर लेते हैं। वाई चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह this afternoon. The team is before you. Shall I? Okay. Virat Kohli captain. Rohit Sharma vice captain. Shikhar Dhawan. KL Rahul. Vijay Shankar. MS Dhoni, wicket keeper. Kedar Jadhav. Dinesh Karthik. Y Chahal. Kuldeep Yadav. Bhuvneshwar Kumar. Jasprit Bumrah. Hardik Pandya. R Jadeja and Mohammad Shami. If you have the names with you, you are most welcome to go ahead with your questions to the chairman. I will. Can I repeat the names? Virat Kohli captain, Rohit Sharma vice captain, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Vijay Shankar, MS Dhoni wicketkeeper, Kedar Jadhav, Dinesh Karthik, Y Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, R Jadeja, Mohammad Shami. That's the Indian World Cup squad for the World Cup 2019. Yes. Rishabh Pant was heavily tested in the team, but was missed out here. Could you explain the reasons to us why he was removed? Well, it's definitely a case where we have debated at length, and all of us in unison we all felt that either Rishabh Pant or DK will only come into the playing 11 if Mahi is injured. So at that juncture, if it is a crucial match like a quarterfinals, like a semi-finals or an important game, wicket keeping also matters. So that's the reason, that's the only reason why we went ahead with Dinesh Karthik. Otherwise, Rishabh Pant was almost there. Good answer. Another important point is three spinners in English conditions. Can you explain the reason? Well, in the last 1.5 years, it is these two wristies who have won us games. But there might be a situations where you might require an additional all-rounder in the playing 11, which Jadeja brings in. So in the second part of the series, second part of the tournament, where wickets might be a bit more drier. So that's where we felt that Jadeja will come in handy. So that's the reason why he's been picked. Chairman, the cut-off date, the Champions Trophy, the cut-off date. After that, the selection will put its weight on Mbati Garden number 4. Yes. He played 21 matches, scored 400 runs. It was not a total failure. What went against him? Why is it the age or what the factors went against him? Well, after the Champions Trophy, we have tried quite a few middle-order batsmen, which also includes Dinesh Karthik at that order, and we also tried Shreyas Iyer and Manish Pandey. We did give a few more chances to Raidu. But what Vijay Shankar offers is three dimensions. Apart from his batting, he can bowl. If the conditions are suitable, if the conditions are overcast, which we might encounter in England, he might bowl a bit, and he's a fantastic fielder. That's the thing that went in favor of Vijay Shankar. Primarily, does he come in as a batsman, Vijay Shankar? Yeah, he's a batsman who can bowl. So you are seeing with the number 4 batsman. We are looking at him at number 4. And we are also looking at, we have with Dinesh Karthik in, and also Kedar Jadhav in there. So we have plenty of options at that number 4 right now. Oh, same question. Yeah. You are looking at him as number 4. Yes, to begin with. Sorry. Yeah. You just mentioned briefly about Raidu, who played about majority of the games.
both you and Cody have spoken about him as a number 4. Just wanted to follow that. Well, it's not anything that went against him. It's only the thing that went in favor of Vijay Shankar. So, because he adds a bit more dimensions to that role, and with his fielding and bowling abilities, that's where he scored ahead of him. One is when it comes to the conditions in England, and I understand how it adds the much to get balance, but how tricky is it to go in with only 3 specialists to a tournament like the World? So apart from these 3 specialist pacers, we also have Hardik who can bowl, so is Vijay Shankar. So in the team, so if you look at in the team, apart from those 2 spinners, we also have Kedar. So this is I think we have this luxury of 7 bowlers. So I think we've covered all the bases that way if you look at it, and I'm sure this is one of the most balanced sides that we have produced. Chairman, कोई भी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज क्रिकेट नहीं है क्या? खलील अहमद का नाम भी डिस्कशन में? Yes, खलील अहमद का नाम भी डिस्कशन आया, उसके साथ साथ सैनी का नाम भी डिस्कशन आया. So they will be in around, and if the need arises, definitely one among them will be picked next. Yeah. Are there any reserve or startup players in this one? And what is the most challenging selection committee meeting for you during your tenure so far, or the reserve? Well, we've been planning soon after the completion of Champions Trophy for this, but let me frankly tell that in the last month or so, there were a couple of places which have really cropped up, like Vijay Shankar and. Any reserve? Yeah, we do have reserves. We'll let you know that. Excuse me? Yeah. So let's say if the team decides to put MS Dhoni as number 4, so that comes under Europe. Do you discuss that as well, or it's like? Yes, it was discussed, and I don't think that was the point. The point that was discussed is that Vijay Shankar will bat at number 4, and so is Kedar Jadhav, and we also have a role for KL somewhere at the top of this thing. Yeah. Do we see KL as a reserve opener, or can he come at number 4 also in the middle order also? To begin with, he will be only a reserve opener. If need arises, it all depends upon the team management's call. Chairman, now that the squad is announced, and now for the last few months you have been talking about the workload and everything. Now, how seriously will what is the way forward now? Now the 1 month is left. I think that's what the team management, along with Patrick, is looking into it. The workload management program is going on. He's constantly in touch with the physios of IPL franchises. 2 questions. I think changes can be made to the squad until 23rd May, even if there are no injuries, right? So do you think IPL form will, the remaining matches will play a role in that? And the second one, the main players picked who have been playing a lot of international cricket since last year, are any of them likely to be given some kind of rest in the remaining matches? Well, your first question is about changes in the team. It all depends upon if somebody is injured. Otherwise, why do you, since you have announced the side, we all discussed and debated and felt that this is the best possible team that can give us best possible results. So there is no point in changing unless somebody is injured. And with regard to the second point, I have already told that there is a workload management program going on. Our trainer and physios are constantly in touch with the trainer and physios of respective IPL franchises. All these players undergone the Euro test, and were there any players who were not considered for the failed the Euro test? No, they've already, there is a program that is going on, every quarter they are doing some sort of a test, so everybody is fit and fine as far as that is concerned. Is there anyone who was not considered because he didn't? No, nothing like that, nothing like that. How much of a role did IPL form have to play? Or how did more or less decided before the tournament? As I told you before also that, after that, we are very much close to picking the side that we picked against Australia. So I don't really see that IPL form. If you really go by IPL form, there are other people who have done exceptionally well, like somebody like Mayank Agarwal, and they've been fantastic. So these young guns are really doing well. Shreyas is doing well. Shubman Gill also batted well.
show his Prithvi Shaw, but we didn't consider the IPL form. Yeah, Chairman, there were reports that, few players will be going, Seamers especially, will be going with the team. Yes. As far as the practice with the team will go. Will that happen, or how many of them will go actually? We are planning about four medium pacers who will travel along with the team. Yeah, we have chosen. We'll just give it to you, and we'll give you a handout on that actually. Yeah. The fact that Rishabh's groundwork is a work in progress, did that factor sort of, weigh in heavily to judge management? Well, you can say that, but see, the situation that was discussed among the selectors. तो तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और तमाम जवाबों पे अब सवाल भी खड़े होंगे, यानी कि जो कोई टीम में सेलेक्ट हुआ उसको लेकर सवाल होंगे मिशा, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाया उससे वो अपने आप में जवाब मांगेगा कि मुझे टीम में जगह बिल्कुल। और हमारे पैनल के पास भी बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं जैसे ही टीम का अनाउंसमेंट हुआ है। रितेंद्र मेरी तरफ देख रहे हैं और वो नाराज नजर आ रहे हैं मुझे। क्यों रितेंद्र? जी हाँ, मुझे लगता है बहुत बैलेंस टीम ये नहीं चुनी गई है। दिनेश कार्तिक को लाना इज फॉलोइंग बैकवर्ड, फॉलोइंग इन द ईयर्स बैक। आपके पास ऋषभ पंत ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जो मैच को अपने दिन बदल सकता है। दिनेश कार्तिक वैसे भी नहीं खेलेंगे, आप उनको लेके जा रहे हैं, आप रिलाई कर रहे हैं उनपे कि वो अगर इंजर्ड होते हैं MS धोनी तो उनको मौका मिलेगा। बट आई थिंक और विजय शंकर को 4 नंबर खिलाना, ये वर्ल्ड कप है, आप उस खिलाड़ी पे जा रहे हैं जिसने अभी तक कुछ प्रूव नहीं किया है। 4 नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन और मुझे समझ नहीं आ रही सिलेक्शन में क्या सोचा। राजकुमार जी को लग रहा है मैसेज आ गया विराट का। फर्स्ट रिएक्शन आपसे भी लेना चाहेंगे और विराट क्या कह रहे हैं वो भी बता दीजिए। मैंने कांग्रेचुलेट किया है कि बहुत शानदार टीम चुनी गई है और मुझे पूरी आशा थी कि यही टीम होने वाली है। वो एक प्लेयर इधर उधर हुआ है बस, और मुझे लगता है बहुत। लेकिन आपको तारीफ इंडिया न्यूज की भी करनी चाहिए, सही टीम दिखाई है, बिल्कुल परफेक्ट खबर हमने दी इस टीम को लेकर। विजय शंकर को लेकर सवाल थे, रविंद्र जडेजा को लेकर सवाल थे, लेकिन हम अपनी बात पे कायम थे कि ये लोग टीम में रहेंगे। नहीं, बिल्कुल जो मेरे ख्याल से जो बेस्ट डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वही हैं इस टीम में, और ये इससे बैलेंस टीम नहीं हो सकती थी भारत की इस वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, राजकुमार जी ने तो कंग्रेचुलेट कर दिया। अंशु सर, व्हाट इज योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन? लगता है आपने कुछ लिख दिया है। अच्छा, ये पर्ची सर ने, ये मेरी टीम पहले से लिखी हुई थी। ठीक है, एक ही चेंज हुआ इसमें, रायडू के बदले ये आ गए। ठीक है, विजय शंकर, बाकी पूरी टीम वही जो 15 मैंने लिखे जी वही है। सर आप सिलेक्टर रहे हैं, आप कोच भी रहे हैं प्रवीण, लेकिन आप बहुत चुप हैं। मुझे लग रहा है आप टीम के सिलेक्शन से लेकर बहुत खुश नहीं है। नहीं, मैं नाखुश हूँ। नाखुश है क्योंकि 4 नंबर विजय शंकर का बनता ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बनता ये भी तो बताइए आप, क्यों नहीं बनता? आपके पास जड्डू भी है ऑलराउंडर, आपके पास हार्दिक पांड्या भी है जी, चहल भी बैटिंग कर लेता है, थोड़ी बहुत बैटिंग कुलदीप भी कर लेता है, सब कुछ कर लेते हैं। थोड़ी बहुत वाला मौका नहीं, यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है ये प्रवीण, ये बैटिंग ऑलराउंडर चुने गए ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर। ये फर्क है कि बैटिंग वो अच्छी करते हैं, देन वो 3-4 ओवर डाल सकते हैं। 10 आउट करने हैं कि 400 रन बनाने? 400 रन कितनी बार बनते हैं? नहीं, यही तो मुद्दा है। नहीं, मैच 4 नंबर पे जिताए हैं कि आप अंबती 4 नंबर पे पहले उनको रख रहे हैं और अजिंक्य रहाणे से पहले आप रख रहे हैं, या तो प्रूवन कोई प्लेयर हो। अगर आपने उनको बैटिंग करते हुए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया, बहुत बेहतरीन टेम्परामेंट में विजय शंकर कौन सा आ गया? कौन सा उनने मैच जिता दिया? कौन सा मैच जिता है? एक मैच जिताया है। आप अगर उनके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें या न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देखें या न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैंने परफॉर्मेंस किया, सबने परफॉर्मेंस किया। जिस तरह की ट्राइंग कंडीशन में उन्होंने प्रवीण जिस तरह की बल्लेबाजी की है, आप किसी को डिफेंड मत करो। ये बहुत नाजायज डिफेंड कर रहे हैं कि विराट कोहली की टीम है। आप अगर चाहिए था। आप मुझे एक बात बताओ, रायडू ने पहले पूछे तो मैंने विजय शंकर के लिए हम सारे बिल्कुल, वो एक ऐसा प्लेयर है जो एक 10 मैच वो खेला नहीं है, आप उसको कंसिडर कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? बना दिया है तो विजय शंकर अगर नंबर 4 विजय तेंदुलकर बोलिए, विजय शंकर मत बोलिए। अंशु जी आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। आपको लग रहा है विजय शंकर का सिलेक्शन जो हुआ है वो गलत हुआ है और ये कप्तान की मनमानी चली यहाँ पे? मेरे ख्याल से देखो, उनको सिलेक्ट किया गया, मेरे लिस्ट में भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क था उसके बारे में, मगर उसको सिलेक्ट इस तरह इसलिए किया होगा कि एक तो बल्लेबाजी कर सकते 4 नंबर पे, दूसरा थोड़ी मीडियम पेस भी डाल देते जो वहां पे काम आ जाए। तो सर सॉरी, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरी बाप की उम्र के हो। मुझे आप एक बात बोलो सर, 5 ओवर तो जड्डू ही फेंक रहा है।
नहीं यहाँ मुद्दा चार नंबर स्पेशलिस्ट आप ढूंढ रहे हो, अब 4 नंबर आप ढूंढ रहे हो ऑलराउंडर। नहीं, जो यहाँ पे क्या खबर आ रही है निकल के वो ये है कि विजय शंकर को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे लिया गया है। रविंद्र राजीव भाई थोड़ा फर्क है इसमें दोनों चीजों में। आप मुझे खिलाड़ी जो 10 ओवर डालेगा, एक खिलाड़ी जो 4 ओवर डालेगा। कभी तो आप ढूंढ रहे हो अजिंक्य रहाणे को, कभी आप ढूंढ रहे हो उनको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन। एग्जैक्टली, कभी आप ढूंढ रहे हो बॉलिंग को करते नहीं है, बॉलिंग करते हैं। 5 ओवर तो जड्डू डाल रहा है। ये देखिए इंग्लैंड के ट्राइंग कंडीशंस में उनका बॉल स्विंग होता है। रिंग आप एक्सेप्ट करोगे कि वहां पे वो एक बहुत यूजफुल ऑलराउंडर साबित होने वाले हैं। मैं अभी आपको 1 महीने पहले से कह रहा था कि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो उन्होंने टेम्परामेंट और जो टेक्निक दिखाई है, वो 4 नंबर खेलेगा नहीं, आप मेरे से लिखवा लो। तो कौन खेलेगा 4 नंबर? वो पहला मैच 4 नंबर खेलेगा, मैं गारंटी करता हूँ। ये कैसे गारंटी करते हैं? मुझे लग रहा है विराट से बात नहीं होगी, मतलब जो जिस तरह अभी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कहा है, ये चेयरमैन सिलेक्शन बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से ये चलाए कि राजकुमार शर्मा जी ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है कि वो नंबर 4 पे विजय शंकर को बल्लेबाजी करते देख रहा हूं। ये तो एक तरह से सीधा इन्होंने टीम ही अनाउंस कर दिया है। 15 में मिले, 11 आप बताए दे रहे हैं। देखिए अभी जैसा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने भी कहा कि वो 4 नंबर के लिए हमने विजय शंकर को रखा है, तो नेचुरली वो पहला मैच खेलेंगे। हमारी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सीनियर वर्सेस जूनियर हो रखा है इस वक्त। हमारा सीनियर पैनल कुछ और कह रहा है, सच्चाई बोल रहे हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, ये अपनी दोस्ती बोल रहा हूँ, ये अपनी दोस्ती नहीं विजय शंकर 4 नंबर पे और बैट्समैन, वर्ल्ड कप मेगा इवेंट, इंग्लैंड और विजय शंकर, ये जवाब है हमारे पास। क्या टैलेंट हमारे पास खत्म हो गया? आप मुझे बताएं कौन था उनके कंपैरिजन में? अंबती रायडू ने बहुत रन बनाए। अगर आपने शंकर को ही कराना था तो रायडू को खेलाते। नहीं। मुझे आप ये बताओ सर, मुझे आप ये बता दो, हार्दिक बॉलिंग नहीं करता? हार्दिक साहब 10 ओवर कभी डराया हमने? यही तो मुद्दा है ना कि सर 4 इससे डाला लिए, 3 इससे डाला लिए, 2 इससे डाला लिए, 5 उससे डाला लिए, वो बॉलिंग करेगा। अगर आपको नहीं लग रहा ये जो टीम चुनी गई है 1983 से बहुत इंस्पायर्ड है, जहां पे यूटिलिटी क्रिकेटर्स बहुत है, 3-4 ओवर गेंदबाजी करने वाले, वो चाहे मोहिंदर अमरनाथ की बात करें, कीर्ति आजाद की हम बात करें, मदन लाल जी की बात करें, ये सभी बॉलिंग ऑलराउंडर थे। लेकिन बहुत कम ऐसे गेंदबाज थे जो कोटा पूरा डालते थे। कीर्ति आजाद और रवि शास्त्री थे उस टीम में। क्या इस टीम में वो झलक दिख रही कि यूटिलिटी क्रिकेटर्स में ज्यादा गए? विजय शंकर, रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, ये सारे यूटिलिटी क्रिकेटर्स है जो टीम में है। देखो राजीव, आप 83 का कंपेयर करो तो सारे के सारे प्लेयर यूटिलिटी थे जी 83 में। यहाँ पे थोड़े प्लेयर्स हैं, 4-5 है, हाँ, जो यूटिलिटी हम कह सकते हैं। मगर प्रॉब्लम जो है, जो मैं रितिंदर के साथ और इसके साथ प्रवीण के साथ मानता हूं कि विजय शंकर को आप यूटिलिटी क्रिकेटर तरीके लिया 4 नंबर के लिए, मगर मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में आप जा रहे हो तो एक बल्लेबाज के नाते जो आप भारतीय टीम का प्रॉब्लम है अभी, नंबर 1, 2, 3 जो पहले 2 विकेट गिर गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि 50 ओवर कौन खेलेगा। अंशु सर, तो वो ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से राइडू वुड हैव बीन बेटर। एक बात बताएं मुझे आप, तो आप केएल राहुल को किस रोल के लिए लेके जा रहे हैं? अरे केएल राहुल एक तो ओपनिंग भी कर सकता है, तो वो नंबर 4 भी खेल सकता है। खेल सकता है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वी हैव गॉट अ चॉइस। तो वो यूटिलिटी क्रिकेटर है, यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और विजय शंकर ने जो मादा दिखाया है बल्लेबाजी का, जो टेम्परामेंट दिखाया है, मुझे माफ कर दो सर, आप माफ कर दो। विजय शंकर 10 मैच के ऊपर आप किसी को कैसे खिला सकते हो? आप उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखिए प्रवीण, आप सर मैंने भी डोमेस्टिक में मेरे ख्याल में नहीं, तो इसीलिए तो आप खेले, आप अच्छे थे इसीलिए तो खेले आप भारत के लिए। 68 मैच में मेरे ख्याल में 300 विकेट होंगे मेरे डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक को नहीं पूछता। नहीं, डोमेस्टिक पूछ रहे, आप डोमेस्टिक के दम पे भारत की टीम में आए क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा एक और सवाल है विजय शंकर के साथ साथ की टीम में सर 3 विकेट कीपर्स की क्या जरूरत है? अगर आप के राहुल को ले रहे तो आप दिनेश कार्तिक की जगह अंबाती रायडू ले लेते, शायद ये बहस नहीं हो रही थी यहाँ पे। बिल्कुल। और देखो केवल राहुल में मेरे ख्याल से वो विकेट कीपर के नाते नहीं आए टीम में, वो कर सकते विकेट कीपिंग, इमरजेंसी आ गई तो कर सकते, मगर मेरे ख्याल से उनको विकेट कीपिंग करते इसके लिए सिलेक्ट किया तो नहीं, मैं नहीं मानता हूं उसमें। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा राजकुमार मेरे को एक बताओ कि विजय शंकर ने कितनी मैचेस खत्म की? अच्छे बल्लेबाज है, तुम बोलते हो अच्छा टेक्निक है, टेम्परामेंट है, वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आज जो दूसरे प्लेयर जो कर सकते हैं
जाके मैच फिनिश करते, ऐसे कितने मैचेस फिनिश किए विजय शंकर ने? आप मुझे बल्लेबाजी करते, आप मुझे उनका कॉम्पिटिटर बताएंगे इस तरह के, ये उनकी जगह अगर आपने ये लिया होता तो बेहतर होता। आप एक प्लेयर तो बताइए। राइडू है, राइडू ने राइडू ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक 100 बनाया, आप उस 100 से आप 100 नहीं, कितनी मैचेस उसने फिनिश किया आप बताएं। मुझे काफी राइडू ऐसा मुझे माफ कर दो, राइडू ने क्या नहीं जीता है आप? नहीं, जिस तरह वो इररेस्पॉन्सिबल शॉट्स मारकर आउट हुए हैं, तो विजय शंकर कौन सा पहाड़ तोड़ के आया? नहीं, विजय शंकर ने जो टेम्परामेंट दिखाया है, कौन सा टेम्परामेंट की बात कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है? परवीन होना चाहिए था विजय शंकर। यार परवीन, आप मुझे एक मिनट दीजिए। सीधी देखो, मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ, सीधी आप मुझे एक बात बता दो। हार्दिक पांड्या बॉलिंग डालता, आप कप्तान हो गए, चार ओवर से डलवा लोगे। 4 ओवर मैंने इससे डलवा लिया, चाल से डलवा लिया, 4 ओवर सोडी भाई से डाल दिए, 4 पीके ने डाल दिए, 4 उसने डाल दिए, फलाना ने डाल दिए, काम पूरा हो गया। काम लेना आना चाहिए। नहीं, पर मेरे को एक बताओ लेकिन सॉरी 4 नंबर तुम ढूंढ रहे हो बैट्समैन, तुम ढूंढ रहे हो ऑलराउंडर, ठीक है? हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी बात। मैं परवीन की बात आप कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट जॉब है और स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं पुजारा की, ये बड़ी चूक है रितेंद्र, बहुत बड़ी चूक है। और मुझे लगता है इतना बड़ा ब्लंडर कभी भी किसी सिलेक्शन में नहीं हुआ है। रोहित शर्मा, शिखर धवन आपके टॉप बैट्समैन ओपन करेंगे। विराट कोहली की क्या दोष है? विराट कोहली आएंगे। अब आप 4 नंबर पे यूटिलिटी, 4 नंबर पे यूटिलिटी शुरू हो गई। अब बात पे लगा लो, सोडी भाई ने एक बात कही थी, शिखर ने कितने रन बनाए? बिल्कुल एक साल में नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है एक साल में। उसे बाहर करते हैं नहीं, क्यों नहीं कर? अरे पास्ट में करके आए हुए हैं, अगर कुछ दुनिया आज को जानती है, आज को पास में तो मैंने भी 200 विकेट निकाली। एक बात बताइए, और आपके नाम से सर ब्रेकिंग हमने चला दी है, दर्शकों तक पहुंचेगी कि नंबर 4 पे खेलेंगे विजय शंकर। ये विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी का बड़ा प्लान है। इसका मतलब ये सिलेक्टर सही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि विजय शंकर एक शानदार खिलाड़ी है, और मेरे को और टीवी में बैठ के ये बात मत करो। बिल्कुल, मैं तो ओपनली कह रहा हूं, और मेरा मानना है ये, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज कहती है कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं और वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं 4 नंबर पर खेलना, क्योंकि वो एक यूजफुल बॉलर भी हो सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि वो यूजफुल नहीं होते या शानदार खिलाड़ी है, मगर उनके साथ साथ दूसरे भी खिलाड़ी ऐसे हैं जो और भी काम आते थे। आप मेरे को बताओ कि 2 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए, 10 रन 10 ओवर में आप विजय शंकर को भेज के वो 50 ओवर खेल के वो टारगेट बनाया? डेफिनेटली, अरे कैपेबल है सर। आने वाला वक्त, अभी तो आने वाला वक्त आपको दिखा देगा। अभी तक देखा नहीं है उसने। देखिए, और जहां तक बात कर रहे हैं कि वो 3 नंबर 4 नंबर खेल रहे हैं, वो आप किसी भी आईपीएल मैच में देख लीजिए, वो 3 नंबर ही बल्लेबाजी कर रहा है या 4 नंबर। आईपीएल की बात ही मत करो। मिशा का बड़ा वाजिब सवाल है, मैं चाहता हूँ मिशा बड़े दिन से उनके जहन में है कि ये पूछना चाहती कुछ आपसे राजकुमार जी। मैं राजकुमार जी ये पूछना चाह रही हूँ, सीधा सवाल है कि क्या फिर ये मान लिया जाए कि ये विराट की टीम है, सिलेक्टर्स की नहीं? बहुत बड़ा सवाल। देखिए, मुझे अगर आप सुन रहे होते अभी एमएस के प्रसाद, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि हमें विजय शंकर नंबर 4 पर चाहिए था, और हमने उन्हें नहीं, विराट को चाहिए था एमएस के प्रसाद? एमएस के को, और विराट ने सेकंड किया होगा। अच्छा, देखिए ये तो बात है ना, मैं सिलेक्टर रह चुका हूँ 4 साल जी। जो होता है ना, फिर बाद में सब साथ में ही चलते हैं और चलना ही पड़ता है, और कहना भी पड़ता है कि नहीं, ये हम कह रहे हैं, विराट नहीं कह रहा है। मगर बात तो यह है कि जितना हो सके उतना कप्तान जो कहता है उनको। लेकिन जो मुद्दा है यहाँ पे विजय शंकर की, जो जिस पोजीशन पर खेलेंगे उसको लेकर चर्चा हो रही है, इस बारे में मैं थोड़ा सा राजकुमार जी के साथ इसलिए हूँ कि उनकी बैटिंग को बहुत नजदीक से मैंने देखा है, और शायद जितने भी अवेलेबल खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप के जो पूल है उसमें वो बहुत टेक्निकली बहुत साउंड लग रहे थे, और इंग्लैंड की कंडीशन जो न्यूजीलैंड में बैटिंग करके आए थे, भले उन्होंने 30 रन 40 रन बनाए थे, बट वो उस पारियों ने कॉन्फिडेंस जीता, सिलेक्टर्स का भी और कप्तान का भी, और शायद वहां पे अंबती रायडू को चांसेस मिले, वो नहीं कर पाए। ये एक बड़ा रीजन रहा है जो ये सिलेक्शन हुआ हमेशा। बिल्कुल राजीव, एक बात, 1 साल से बात हो रही है 4 नंबर कौन खेलेगा। हाँ, 1 साल से इतना बात 4 नंबर किसको खिलाए, और आज सिलेक्शन के बाद नाम आया है विजय शंकर का। तो ये दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला नाम है, प्रूवन वो नहीं है, इंग्लैंड कंडीशंस है, वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है, और यहां पे आप ऐसा खिलाड़ी लेके जा रहे हैं जो राजकुमार जी के हिसाब से टेम्परामेंट है। अब वो टेम्परामेंट
कितना वहां पे काम आता है ये तो अब 30 मई के बाद ही पता चलेगा। बट दिस इज नॉट ऑन। विजय शंकर को नहीं होना चाहिए था। मैं परवीन के साथ हूं। ये टीम 4 नंबर आप कहते एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बोलता कि जी पुजारा होना चाहिए। हाँ, पुजारा डोमेस्टिक वनडे कितना खेलता है? आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हो। हाँ? उसका नाम लिया एक बहुत बड़े आदमी ने, बहुत बड़ा प्लेयर है कि जी पुजारा होना चाहिए 4 नंबर। इंग्लैंड का कोई है प्लेयर मुझे पता, फला होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे तुम स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हो, बैट्समैन जी, तुम ऑलराउंडर 4 नंबर ढूंढ रहे हो। नहीं तो इससे पहले भी ऑलराउंडर खेले 4 नंबर पे, ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर 4 नंबर पे नहीं खेले। ऑलराउंडर बिल्कुल क्या ये कपिल देव है? नहीं है ना, कपिल देव तो कभी 4 नंबर नहीं खेले। मैं कह रहा हूँ ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। आप बोल रहे हो ऑलराउंडर 4 नंबर, वो पोजीशन जब विराट कोहली अगर आउट हो जाते हैं। कर रहे रितेंद्र, ये ऑलराउंडर की बात नहीं है, यहाँ पर यूटिलिटी, यहाँ पे हमें बल्लेबाज चाहिए था जो संभाले कंडीशंस को, संभाले। और क्या विजय शंकर जवाब है? भारत देश करोड़ों की आबादी है, विजय शंकर जवाब है। आप जवाब दीजिए ना कि उनके अलावा कौन था, बताइए। चलिए, इससे बेहतर तो पुजारा ले लेते, रहाणे ले लेते, राइडू ले लेते, लेकिन विजय शंकर 4 नंबर ले लेते नहीं, राइडू चाहिए था। राइडू चाहिए था। अगर विजय शंकर ले लेते नहीं, आप क्यों नहीं समझते कि राइडू हो सकते थे? नहीं, देखिए उनसे बेहतर प्रदर्शन है विजय शंकर का। अच्छा। और जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया है, मैं तो उसके तहत कह रहा हूं कि, और ये मैं और राजीव काफी समय से डिस्कस कर रहे थे जब हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, तो जिस तरह से उनका प्रदर्शन था। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हिंदुस्तान के लिए कितने मैच खेले इसने? बहुत ज्यादा नहीं खेले, लेकिन वही एक बात सुनिए, आप पृथ्वी शॉ को 1 मैच खेलते हैं वो। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट, आप मेरी एक बात, एक मैच एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख होता है। पहला मैच खेलता है पृथ्वी शॉ, लगता है ये एक